দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, ওকে দেন। Oh, sorry. Okay, so this is our third lecture on. We were discussing our advanced highway and transportation engineering. Okay, and I went directly to the airport engineering module, and this is our third lecture. As I said yesterday, Samsri asked me how we will measure which direction our orientation or runway should be placed. Okay, runway should be oriented and all. So today we will learn that only, in which direction we must lay our runway. Okay, that we will learn. That's why it is called runway orientation. And there is one method with the help of which we can find out the orientation, whether we can say the proper orientation, suitable orientation for a particular region. Okay, that is Windrose diagram. There are mainly two types of Windrose diagram, but today I will discuss only one type, first type. Okay, type 1. And at the last and at last we will discuss one numerical based on this Windrose diagram type 1. Okay, so other topic that we will cover today is what how to draw this diagram. Okay, procedure of drawing this Windrose diagram. Okay, see, the name itself suggests that it is considering wind, right? We need some data. Okay, so that data is what? Wind data. Okay, we already discussed that for landing, for proper landing and takeoff of an aircraft, wind plays a vital role. Okay, wind, the direction of the wind, intensity and the duration of the wind plays very important role in this landing and takeoff operation of a aircraft. Okay, that's why we must consider what are the different data that are required. Apart from wind, there are several other data that we must have in with us, so that we can draw this Windrose diagram easily. Okay, now what is this? The next topic will be wind direction and its components. See, wind doesn't come only from particular only from one direction. Okay, it comes from several directions. So we must, what we do, we must divide those wind, particular wind, into two components, that is cos and sin theta. Okay, I will show you in the diagram. So here we will learn that what are those components of the wind direction. Okay, whether it is coming, whether your wind is flowing opposite to the direction of the aircraft movement, or it is flowing parallel, not parallel, along the direction of the aircraft movement. Okay, or whether the wind is flowing perpendicular to the direction of the movement. So depending upon this direction, there are three types of components. We will discuss about it. Another term is what? Wind coverage. Okay, wind coverage, we will discuss it. Wind coverage and what are its recommendations, means how much should be the wind coverage for certain type of aircraft or certain type of airport. Okay, then another term we will learn is calm period. See, all these things must be, you must have idea about wind coverage, calm period, in order to solve this Windrose diagram numerical. Because in question they will ask you, first they will ask you, tell us what is the, which is the best runway orientation. I mean, in which direction your runway should be placed. Okay, runway should be aligned. What is the wind coverage of that runway? Okay, and what is the calm period? So we must, and in order to find this wind coverage, we must know about the calm period also. We will see in the later side, you will understand. Okay, so these are the topics that we will learn. Now, data required. The first data, as I said, wind is the one data. Apart from this, there are several other datas. Okay, there are more two datas which we must keep in our consideration. First is a map of the area and contour. You must have this data along with you in order to design this or runway orientation. Okay, why map? Another second one is your wind data, and the third one is fog characteristics. Fog characteristics, why, as I said in yesterday's class, that visibility should be clear. If your visibility of that particular airport site is not clear, that means it consists of fog, smoke and like that, then what happens? The operation, the landing and the takeoff operation will get affected. Okay, so in overall, the
the function of the airport will decrease. Okay, so we must consider this fog characteristics of the areas also. Now, why map? To examine flatness of the area, whether the runway where you are plotting, where you are laid runway, okay, in that area, whether that area is slopy, hilly terrain, or flat, yeah, plain terrain, like that. Okay, we have to see that also. Depending upon this terrain also, your runway length will vary. That we will discuss in later lecture. Okay, that is your runway length correction. मैम हाँ, मैम yes, किसी ने ऐड होता चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, দুজন। So see, to examine flatness of the area, okay, to also to examine the possible changes in the longitudinal profile. Longitudinal profile means your gradient change. Okay, gradient, that means if you move 100, if you move certain h distance horizontally, then what will be your elevation. Okay, that is the longitudinal profile. We have to consider that also, so that we can keep these two things into permissible limit, within permissible limits. Okay, now what are the wind data? Direction, from which direction such and such wind is occurring. Okay, for how many days, or rather we can say this duration will be percentage of time. Okay, suppose you are considering for 365 days, matlab you are considering for 1 year. Okay, so in a 1 year, suppose your wind coming from the north direction, okay, of certain intensity, say for example 60 km/h. Okay, that wind is flowing from the north direction. Okay, what is the duration in percentage? That means throughout the year, how many days that particular velocity of wind will come from north direction. That is the duration. This is clear. Duration means, suppose from north direction 60 km/h velocity speed is coming from, for say about 300 days. Okay, it is coming from that direction for 300 days. So percentage will be how much? 300 divided by 365 into 100. Okay, so that is the duration. So it must be considered for runway orientation also, as well as the intensity. Okay, what is the velocity of the wind? Because all these things will affect your runway orientation. Why? As I said yesterday in yesterday's class, that our runway should be preferably in the direction parallel to the direction of the wind. Okay, not in the perpendicular to the direction of the wind. It should be parallel. Okay, so for that we must consider in which direction maximum velocity of the speed and for maximum time of the year wind is coming. Okay, so we must consider that thing. Now runway must be oriented in the direction of prevailing wind. See, it's already discussed that runway must be oriented in the direction of the prevailing wind, and these three data is used in your Wind-Rose diagram. Okay, and this Wind-Rose diagram is used for developing runway orientation. Fog characteristic, as I said, for better understanding of the visibility, we must consider these characteristics. That means it should be clear, okay, because it will affect in landing and takeoff of the aircraft. Now see, as I said, direction. Wind will not, certain type of wind moving in certain velocity will not always come from the same direction. Okay, the direction may change. It is not like that it will always come perpendicular to the direction of the motion, or it will always come parallel to the direction of the aircraft. It may come at certain angle also. So there is some variable, okay, and the same wind, it may be parallel, it may be 90-degree, or it may be at certain angle with the movement of the, against the movement of the aircraft. Okay, throughout the year it may not remain same. So that's why this direction of the wind must be considered. Now why? Because it will affect the aircraft movement. Okay, now depends upon depending upon this. প্রিয়াঞ্জন জয়েন করবে ম্যাম, আপনি Okay, অ্যাকসেপ্ট okay, করুন। okay, okay, okay. Hello? Okay.
सी सो डिपेंड्स अपॉन वेदर द विंड इज एक्टिंग, मतलब किस डायरेक्शन से एक्ट करता है उसके ऊपर ये तीन टाइप का तुम्हारा कंपोनेंट जनरेट होता है। ओके, देयर दिस थ्री कंपोनेंट्स विल गेट जनरेटेड, से हेड विंड, टेल विंड एंड क्रॉस विंड। हेड विंड मीन्स व्हाट? द विंड विच इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। ओके, जैसे एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन हेड विंड इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, टेल विंड क्या है? इट इज मूविंग along the direction of the aircraft movement, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो ये विंड भी इसी तरफ में मूवमेंट कर रहा है, दैट विंड इज योर टेल विंड। whereas क्रॉस विंड मतलब क्या है? इसका डायरेक्शन ऐसा है, देन द क्रॉस विंड विल बी आइदर परपेंडिकुलर, मतलब मैक्सिमम जो इफेक्ट करता है दैट शुड बी परपेंडिकुलर। ओके, सो जो विंड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट मूवमेंट दैट इज नोन एज क्रॉस विंड। ओके, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन वाइज एक्ट कर रहा है। क्लियर टिल नाउ? Now let us discuss head wind. देखो, head wind as I said it is blowing from opposite direction. Okay, blowing from the opposite direction to the head and it will act against the head or nose of the aircraft. मतलब अगर ये nose है तो इसके against में ये wind act करेगा। Okay, now tell me head wind होना ज्यादा जरूरी है ना कि क्रॉस विंड या टेल विंड? विच वन इज मोर सुटेबल, मतलब कौन सा ज्यादा मतलब होने से अच्छा है हेड की तीनों में से? मैम लैंडिंग एयर कहते हेड विंड हाँ, क्यों? व्हाई? ऑटोमेटिकली रिडक्शन कर देता है, रिडक्शन स्पीडটা কমে যাবে অটোমেটিক। यस, ओके। आल्सो इफ यू आर टेकिंग ऑफ, इफ यू आर তখন আমি টেল উইন্ড टेकिंग ऑफ, ओके, सी it provides braking effect while landing. See, this vehicle, sorry, this aircraft is in landing condition. Okay, it's now in landing condition. Now certain amount of the wind is coming from this direction, opposite to the direction of the motion. Okay, and acting against the nose. Okay, so this is called head wind. Now when it comes in this direction and your movement of the wind is in direction, then what happens? It will take less distance to stop. मतलब कि ये प्लेन को रुकने के लिए कम डिस्टेंस लगेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रेकिंग इफेक्ट। ये एक ब्रेकिंग इफेक्ट, इसका तो खुद का तो ब्रेक है ही, प्लस ये जो फोर्स अगेंस्ट में आ रहा है वो भी उसको ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। ओके, सो इसको कम डिस्टेंस में क्या हो जाता है, वो रुक जाएगा। ओके, सो वो कम डिस्टेंस में जाके रुक जाएगा। अब नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ रनवे? रनवे का पर्पस क्या है? बोलो, पर रनवे हम लोग दे क्यों रहे हैं? हम जाते सेफली लैंड করে যায়, सेफली लैंड, और इसका मेन প্লেনের है স্পিডটা কমানোর জন্য। एग्जैक्टली, एक है अगर ये लैंडिंग कर रहा है तो इसका स्पीड कमना चाहिए, ठीक है? वो तो आकाश में तो कमते कमते नहीं आएगा, सर्टेन उसको फ्रिक्शन भी चाहिए रहता है जमीन में, राइट? जमीन में आके उसको लैंडिंग करना है तो क्या हो जाता है, वो इतना मतलब जितना स्पीड से आता है वो कम डिस्टेंस पे जाके रुकता नहीं है, उसके लिए सर्टेन लेंथ वी हैव टू प्रोवाइड। ओके, सो दैट्स व्हाई रनवे इज डिजाइन्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पस। ओके, दिस इज इन केस ऑफ लैंडिंग। अब तुम्हारा इन केस ऑफ टेक ऑफ क्या होता है? इन ऑर्डर टू मतलब उसको एक क्या बोलते हैं, उड़ जाने के लिए, टेक ऑफ के लिए इट शुड गेन सर्टेन स्पीड। अब वो उसको स्पीड कैसे गेन करेगा? फॉर दैट इट हैज टू बी ट्रैवल। ओके, ये उसको कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना स्पीड जीरो से जिस स्पीड से उड़ जाएगा उस स्पीड तक वो अपना स्पीड को ले सकेगा, टेक ऑफ स्पीड तक, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या है, जमीन में कुछ उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जैसे तुमको दौड़ना के लिए पूरा स्पीड स्लोली स्लोली दौड़ते हो, वैसे इसको भी स्लोली स्लोली अपना स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए वो रनवे में मतलब मूवमेंट होना जरूरी है। ओके, तो अगर ये हेडविंड आ रहा है तो क्या सुविधा होता है इन लैंडिंग? क्या होता है, इसको कम डिस्टेंस में ही मतलब इट विल गेट स्टॉप। ओके, मतलब लैंडिंग कम डिस्टेंस में हो जाएगा। तो लैंडिंग कम डिस्टेंस में हो जाएगा मतलब क्या है, तुम्हारा रनवे लेंथ भी कम चाहिए। अगर तुम्हारा रनवे लेंथ कम है तो अल्टीमेटली तुम्हारा खर्चा भी कम होगा, राइट? कंस्ट्रक्शन का पैसा तो बच गया ना। पहले सपोज इतना मीटर चाहिए था, अभी कम के उसका 50% हो गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस हेडविंड, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा लेंथ क्या है, रिड्यूस हो गया। तो लेंथ रिड्यूस हो गया मतलब तुम्हारा
कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया है। ओके, तो यही हमको देखना है, इसीलिए हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेडविंड। ओके, क्योंकि हमको इकोनॉमिक रनवे लेंथ चाहिए, मतलब ज्यादा लंबा नहीं चाहिए, ठीक है। सो इट प्लेज वेरी वाइटल रोल हेडविंड, इसीलिए हमको ये विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी, ये सब डाटा हम लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर लिफ्ट। अब ये जब टेक ऑफ कर रहा है तो क्या होता है, देखो इसमें एक अपथ्रस्ट इसको दे देता है, इसका जो पंखा है उसमें ये जो हवा आ रहा है ये तो यहीं से होके तो जाता है ना, हवा इधर से पास होके तो जाता है, तो ये जो हवा आ रहा है ये उसको अपथ्रस्ट दे रहा है। अपथ्रस्ट की वजह से क्या हो रहा है, इट इज इजीली, मतलब इसको टेक ऑफ करने में इजी हो रहा है, तो इजीली ये ऊपर की तरफ अपने आप ड्यू टू प्रेशर, एयर प्रेशर, ये अपने आप उठ जा रहा है। एक तो स्पीड से भी उठ रहा है और तुम्हारा प्रेशर जो है उससे भी ये उठ जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस हेडविंड, ठीक है। सो इससे भी तुम्हारा क्या होता है, वो जल्दी टेक ऑफ कर रहा है, मतलब कम डिस्टेंस में टेक ऑफ कर जा रहा है। ओके, तो उसमें भी फिर से रनवे लेंथ विल बी रिड्यूस। सो हेडविंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा तुमको रनवे लेंथ ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि उस डायरेक्शन में हेडविंड बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हेडविंड हो। ओके, तो तुम्हारा टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सुविधा होगा, फॉर विच योर रनवे लेंथ विल बी रिड्यूस ऑटोमेटिकली, इट विल बिकम इकोनॉमिक। ओके, अब टेल विंड क्या है, टेल विंड उसका उल्टा काम करेगा। ओके, टेल विंड क्या है कि ज्यादा उसको मतलब फोर्स पुश कर रहा है, जब ये टेक ऑफ कर रहा है इसको, एक तो अपना स्पीड भी है और हवा भी दे रहा है धक्का, राइट, तो वो उसको पुश कर रहा है, राइट। वेयरएज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो ये जब लैंडिंग कर रहा है वो शायद कम डिस्टेंस में जाके लैंड करता था, लेकिन ड्यू टू दिस विंड और पुश होके वो और मोमेंट की वजह से वो और डिस्टेंस में जाके थम गया। सो इससे क्या हो जाता है, तुम्हारा लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस जो है और तुम्हारा जो लैंडिंग डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि स्टॉपिंग डिस्टेंस और लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस इससे इंक्रीज हो जाता है टेल विंड से। ओके, अब आता है क्रॉस विंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज तुम्हारा आता है, ठीक है, तुम्हारा शॉर्ट नोट्स भी आता है क्रॉस विंड से। नाउ व्हाट इज क्रॉस विंड, क्रॉस विंड इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है, ये सब तो था क्या पैरेलल कंपोनेंट, अब ये वाला था ट्रांसवर्स, मतलब ये ट्रांसवर्स सेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखो दिस इज द क्रॉस विंड, ओके, व्हिच मेक्स 90 डिग्री एंगल, ओके, टू द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। अब तुम बोलो जितना ज्यादा ये क्रॉस विंड होगा, सेफ है कि अनसेफ है? कोई एयरपोर्ट में तुम ऐसा डिजाइन किए हो कि वहां पे क्रॉस विंड बहुत ज्यादा, मतलब अक्रॉस में जो विंड आता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से आता है और बहुत ज्यादा देर तक आता है, मतलब थ्रू आउट द ईयर में बहुत बार आता है, तो होने से क्या होगा, क्रॉस विंड ज्यादा होने से इज इट गुड और बैड? बैड मैम। बैड क्यों? डिसबैलेंस हो जाएगा। यस, डिसबैलेंस भी होगा, प्लस इसका तो एक हम लोग तो जगह दे दिए कि तुमको यहीं पर ही लैंडिंग करना है, यहीं से टेक ऑफ करना है, राइट। तो अगर ये क्रॉस विंड ज्यादा आ रहा है और थ्रू आउट द ईयर इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वो बार बार अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, तो उसको जितना मतलब क्या बोलते हैं, अभी दिखाएंगे तुमको कैसे डेविएट हो जाता है ड्यू टू क्रॉस विंड, ठीक है। तो ये सो दिस इज नॉट गुड, इट इज अनसेफ। ओके, सो इसकी वजह से ये अनसेफ होता है। तो हमको व्हेन वी विल रन ओरिएंट, व्हेन वी विल डिजाइन आवर रनवे ओरिएंटेशन, ये क्रॉस विंड शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम, ये ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ऐसा डायरेक्शन में हम ले करेंगे अपना ओरिएंटेशन, रनवे ओरिएंटेशन, जिसमें तुम्हारा क्रॉस विंड कंपोनेंट should be limited और it should exceed। क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? क्रॉस विंड ज्यादा होने से अच्छा कि कम होने से अच्छा है? कम होने में भला। हाँ, कम। तो हमको वैसा ही देखो, बहुत सारा तुम्हारा अगर डायरेक्शन बोलोगे तो बहुत सारा डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। तो किस डायरेक्शन में हमको ये अपना ओरिएंटेशन लगाना है, अपना रनवे को अलाइन करना है, राइट। तो उस डायरेक्शन को ही हम सिलेक्ट करेंगे जहां पर ये क्रॉस विंड कंपोनेंट इज वेरी लेस कंपेयर टू द अदर डायरेक्शन, ठीक है, यही हमको चाहिए। ओके, तो फॉर सेफ मैन्यूवर। अब आते हैं कि एक एग्जांपल देखो, क्या इसको अगर हम डायग्रामेटिकली ग्राफिकली अगर करेंगे तो क्या होता है, सपोज दिस इज योर रनवे, ओके, और इसका ये सेंटर लाइन है सपोज, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, अच्छा ये नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे साउथ है, ओके, साउथ छिप गया है।
अब सोचो कि हम लोग का मतलब ऐसा तो नहीं है कि विंड विल ऑलवेज कम फ्रॉम आइदर दिस डायरेक्शन और इट विल कम फ्रॉम आइदर दिस डायरेक्शन, राइट? एकदम परपेंडिकुलरली ऐसा आएगा या पैरेलली आएगा, नहीं हो सकता है, इट में चेंज इस डायरेक्शन, राइट? तो सपोज तुम्हारा विंड ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, दिस इज ए रनवे सेंटर लाइन, ओके, विच इज मेकिंग एंगल ऑफ थीटा विथ योर सेंटर लाइन ऑफ द रनवे, ठीक है? तो अब हमको क्या कर देना है, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस, इसको, ये तो रिजल्टेंट हो गया, इसका दो कंपोनेंट हमको निकालना है, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट निकाल देना है। तो कौन कौन सा होगा, सपोज ये वाला स्पीड है v, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसका कॉस कंपोनेंट कहाँ पे होगा बोलो, ये v का कॉस कंपोनेंट पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर होगा? नॉर्थ से तो मैं अलाइन होगा। यस यस, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले करेगा ऐसे, ठीक है? सो दिस इज v cos थीटा, ठीक है, और दूसरा है v sin थीटा, मतलब परपेंडिकुलर का जो इसका कंपोनेंट है, दिस v sin थीटा इज योर क्रॉस विंड कंपोनेंट, ठीक है? नाउ दिस v cos थीटा इज योर हेड विंड और क्रॉस विंड, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग और डायरेक्शन ऑफ टेक ऑफ, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये टेल विंड होगा या हेड विंड होगा, ठीक है? अगर तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, कि मतलब यहाँ से आके लैंडिंग कर रहा हो, यहीं से इसी डायरेक्शन से वो टेक ऑफ करेगा, अगर ऐसा है तो इफ द एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग टुवर्ड नॉर्थ या टेक ऑफिंग फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ओके, देन दिस v cos थीटा विल बी योर, क्या होगा, ये टेल विंड है कि हेड विंड है? हेडविंड, हेड विंड, ओके, whereas this v sin theta is acting perpendicular to the direction, so this will be your cross component, okay, cross wind component। तो ये ऐसा डायग्रामेटिकली इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ओके। अब आते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो क्रॉस विंड से क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई क्रॉस विंड नहीं है तो ये पूरा देखो पैरेलली आ रहा है एयरक्राफ्ट, ओके, रनवे है, रनवे के एकदम पैरेलली ये नीचे उतर रहा है, ओके। लेकिन अगर क्रॉस विंड हो गया तो क्या हो जाएगा, इसको उतरने में दिक्कत हो रहा है, देखो ये पीछे की तरफ धक्का देके उस तरफ जा रहा है, इसको आना इस तरफ है, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्रॉस विंड क्या हो रहा है, ये उस तरफ धक्का खा के जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए, इट इज अनसेफ। अगर बहुत ज्यादा फोर्स से आएगा तो ये पूरा अपना रनवे लेन से पूरा स्टीयर ऑफ हो जाएगा, ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमको ये ओरिएंटेशन जो है, ये अलाइनमेंट जो है, ये वाला रनवे, इट शुड बी इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे ये जो क्रॉस कंपोनेंट या क्रॉस विंड कंपोनेंट इज लेस, या एक लिमिट होता है कि इतना ही लिमिट कर दो, उस लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। होगा क्रॉस विंड होगा, लेकिन वी हैव टू मेंटेन दैट लिमिट कि इतना ही हम अलाउ करेंगे क्रॉस विंड को, ठीक है। नहीं तो ये बहुत ज्यादा अगर हो गया तो इट विल नॉट बी इन ऑपरेटिव, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, ये एयरक्राफ्ट चलेगा ही नहीं। सो फंक्शन इसका मेन क्या है, ये एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करना, टेक ऑफ करना, ये सभी तो इसका फंक्शन है, पैसेंजर के एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये पूरा दिन ही बंद ही रहेगा, मतलब पूरा साल ही बंद ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा साल नहीं, मतलब मैक्सिमम साल ही अगर बंद रहेगा बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस विंड कंपोनेंट, देन इट विल बी नॉन फंक्शनल, राइट, इसका फंक्शन जो है वही फुलफिल नहीं होगा। सो इसीलिए क्रॉस विंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इफेक्ट ये वाला देखो, ये जो आ रहा है, अगर क्रॉस विंड आ रहा है तो ये देखो धीरे 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 ऐसा हो जा रहा है, राइट। तो इसको इससे क्या होता है, इट विल रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ रनवे, राइट, इट विल रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ रनवे, क्योंकि ये सेफ नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम में जब ये क्रॉस विंड ज्यादा आता है, एक साल में कभी ये ज्यादा आता है, तो उस टाइम में ये रनवे यूज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द लिमिट्स, ये लिमिट थोड़ा याद रखना है, ओके एवरीवन, प्लीज रिमेंबर दिस लिमिट्स, ओके। अगर एमसीक्यू अगर आता है तो ऐसा आ सकता है कि फॉर स्मॉल एंड मीडियम व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रॉस विंड, तो इतना किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ओके। लेकिन इन जनरल अगर पूरा डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल के लिए क्या है, स्मॉल टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए 15 है, मीडियम के लिए 25 और बड़ा के लिए 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका जो स्पीड it should not be greater than these values, okay, cross wind ka speed for such and such type of the aircraft. Now comes wind coverage. अब wind coverage क्या है, okay, wind coverage is what, it is the percentage of the time in a year during which cross component is within the limit. Suppose हम बोले थे कि इसका maximum limit कितना है cross wind, 25 किलोमीटर पर आवर। इन जनरल अगर बोलेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर
से ज्यादा क्रॉस विंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस विंड वहां पे जा भी रहा है देन इट शुड बी विद इन दिस लिमिट। ओके, अब क्या बोला है, इट इज द परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर विच क्रॉसविंड कंपोनेंट इज विद इन दिस स्टिपुलेटेड परमिसिबल लिमिट। मतलब तुम्हारा 365 डेज रहता है एक ईयर में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पूरा 365 डेज ही मतलब हर दिन ये क्रॉसविंड क्रॉस कर जाए, मतलब 25 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच जाए, ये भी नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि 365 डेज में कभी भी तुम्हारा क्रॉसविंड इससे क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो क्रॉस विंड तो है ही, दैट विंड इज अवेलेबल एवरीवेयर, लेकिन वी शुड कीप इट इन अ लिमिट। ठीक है, अगर 365 डेज में जितना नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये क्रॉस विंड के विद इन द लिमिट रहा है, देन दैट परसेंटेज ऑफ टाइम इज नोन एज विंड कवरेज। क्लियर? एक एग्जांपल अगर हम देंगे, देखो, सपोज नंबर ऑफ डेज व्हेन विंड वेलोसिटी वाज बिलो 25 किलोमीटर पर आवर, हम बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर योर विंड वेलोसिटी वाज बिलो 25 किलोमीटर पर आवर। सपोज 350 डेज, 365 में 350 दिन वो 25 किलोमीटर जो मैक्सिमम लिमिट है क्रॉस विंड का, उससे कम था। ठीक है, देन व्हाट इज द विंड कवरेज? विंड कवरेज विल बी योर, सॉरी ये 350 है। ठीक है, 350 बाय 365 into 100, दैट इज 98.6%। ओके, सो दिस इज द विंड कवरेज, कि कब कितना दिन तुम्हारा इन परसेंटेज ये क्रॉस विंड को क्रॉस नहीं किया है। ओके, मतलब इस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एयरपोर्ट तुम्हारा विंड कवरेज में वेरी एज पर शोन इन दिस टेबल। ओके, मतलब मैक्सिमम इन द केसेस, मैक्सिमम केसेस में हम लोग 95 ही पकड़ लेते हैं। ओके, ठीक है, और बिजी एयरपोर्ट जो होता है, मतलब हर उसको 365 डेज ही उसको चलाना पड़ेगा, राइट? तो क्या हो जाएगा, देखो विंड कवरेज कितना है, 98 to 100%, मतलब कि वो 365 डेज ही चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो 350 डेज चल रहा है और बाकी दिन क्या करेगा, वो इनऑपरेटिव रहेगा, क्योंकि वहां पे क्रॉस विंड 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, मतलब ज्यादा धक्का देगा, राइट? उसको इनऑपरेटिव, मतलब वो अपना रनवे से मतलब क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ कर जाएगा, राइट? तो इसीलिए तब हमको एयरक्राफ्ट यूज नहीं करना है, सॉरी रनवे यूज नहीं करना है। ठीक है, अब तुम्हारा देखो अगर बोलेगा कि ये क्रॉस विंड इसका कितना है, विंड कवरेज 50% है, मतलब क्या है कि मतलब 365 डेज में 6 महीना इनऑपरेटिव है, ऑपरेटिव कंडीशन में है, क्योंकि वो इट इज इन द लिमिट, राइट? और बाकी का 6 महीना तुम्हारा रनवे चलेगा ही नहीं, क्योंकि क्रॉस विंड ये 25 किलोमीटर से ज्यादा आ जा रहा है, तो धक्का ज्यादा होगा तो उससे अनसेफ हो जाएगा, इसलिए हमको वो रनवे लेंथ मतलब यूज ही नहीं कर पा रहे हम, राइट? सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो बोला है कि कितना टाइम हमको यूज करना चाहिए, 95, अगर 100 डेज है टोटल तो 95 डेज हमको यूज करना है, और रिमेनिंग 5 डेज हम उसको अनयूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा ओरिएंटेशन बनाएंगे जहां पे 95 डेज, अगर 100 डेज टोटल है तो 95 डेज तुम्हारा क्रॉस विंड कम रहेगा और रिमेनिंग 5 डेज क्रॉस विंड ये ज्यादा रहेगा, मतलब 25 से ज्यादा रहेगा। तो जब तुम्हारा क्रॉस विंड ज्यादा है वी आर नॉट यूजिंग द रनवे, और जब कम है वी आर यूजिंग द रनवे। सो अल्टीमेटली वी कैन से 95 डेज हम यूज कर रहे हैं और 5 डेज उसको बंद रख रहे हैं। ओके, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके, तो देखो ये मुंबई का एक एयरपोर्ट है। ठीक है, मुंबई में ये 2 रनवे किया है, क्यों किया होगा, एनी आइडिया? ম্যাম একজন অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে বলছে, এটা বুঝতে পারছি না, নাম্বারটা সেভ নেই। अच्छा बोलो तो ये क्यों है, ये मुंबई एयरपोर्ट में 2 रनवे क्यों दिया है? एक दिया है तुम्हारा क्या, मेन रनवे, दूसरा क्या दिया है, सेकेंडरी रनवे। मैम मेन রানওয়েতে যদি ওই ক্রস উইন্ডে যখন বেশি আসবে তখন সেকেন্ডারি দিয়ে করা হবে। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। इसका 2 क्यों दिया है, क्योंकि ये तुम्हारा एक रनवे
95% फुलफिल नहीं कर पा रहा है, शायद 60% ही हम इसको, मतलब 60 डेज ही हम इसको यूज करेंगे। अगर 100% टोटल डेज है तो इसको हम 60 टाइम्स ही यूज कर पाएंगे, लेकिन रिमेनिंग 40 टाइम्स क्या होगा, ये इनऑपरेटिव रहेगा इन दिस डायरेक्शन। तब क्या हो जाएगा, क्रॉस विंड ज्यादा आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रिमेनिंग 40 डेज में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही पूरा सेम मेथड से यहाँ पे भी एक अलाइनमेंट किया है, सुटेबल अलाइनमेंट, जहाँ पे तुम्हारा शायद इससे थोड़ा कम रहेगा विंड कवरेज, लेकिन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये वाला तुम्हारा 60% यूज करेगा, 60 नंबर ऑफ डेज यूज करेगा, और ये शायद 30 डेज यूज करेंगे, ठीक है, मतलब रिमेनिंग 40 में से 30 डेज ये यूज करेगा। तो बचा क्या, 10 डेज हम ये एक्सेप्टेबल है, मतलब 35 डेज यूज करेंगे तो रिमेनिंग 5 डेज विल बी इनऑपरेटिव। ओके, ये 95 क्रॉस कर रहा है, राइट, तो दोनों मिलाकर 95 हो जा रहा है। So that's why like this alignment has been using, okay, तो इसीलिए तुम्हारा ये सब intersecting ये सब आता है। Okay, then now comes the calm period। calm period मतलब क्या है, देखो एकदम शांत हवा जब रहेगा, okay, शांत एकदम, जब वो शांत हवा जब बहता है, कितना दिन बहता है थ्रू आउट द ईयर, वो शांत हवा कितना दिन बहेगा, that is your calm period। okay, so percentage of the time in a year during which your wind velocity is within 6 किलोमीटर पर आवर। वो शांत जो हवा है उसका स्पीड कितना है, बोल दिया है 6 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो जितना भी विंड आएगा 6 किलोमीटर से नीचे, ठीक है, वो थ्रू आउट द ईयर कितना दिन आ रहा है, कितना नंबर परसेंटेज टाइम में आ रहा है। सो दैट इज योर काम पीरियड। ओके, एंड इट इज, ये वाला हर टाइम रहेगा, मतलब काम पीरियड तुम्हारा क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर वाला हवा तो रहेगा ना, आसपास में तो रहेगा, ये हरदम रहेगा। ओके, तो वी हैव टू कंसीडर दिस काम पीरियड ऑल्सो इन योर विंड कवरेज। ओके, इसमें भी हमको ये कंसीडर करना है, क्योंकि काम पीरियड क्या करता है, इट विल नॉट इफेक्ट, ये देखो 6 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये क्रॉस विंड कंपोनेंट होके भी आएगा तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इट इज एन एग्जिस्टिंग विंड, सो हमको इसका भी नंबर ऑफ डेज कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो दिस हैज अ नेग्लिजिबल इफेक्ट इन द एयरक्राफ्ट मूवमेंट। ओके, तो ये याद रखना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, तुमको अगर दे देगा कि सपोज 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन से पर्टिकुलर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब क्या बोलते हैं वेलोसिटी वाला विंड इतना इतना दिन आ रहा है, इतना इतना परसेंटेज आ रहा है, इतना इतना परसेंटेज ऑफ टाइम आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसको टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है, तो टोटल थ्रू आउट द ईयर हर डायरेक्शन से टोटल विंड जिसका मतलब अबव 6 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड जो भी, ठीक है, कितना बार आ रहा है। इफ यू नो दैट स्पीड, ठीक है, if know that percentage, suppose that percentage is x, then what is the calm period? calm period will be remaining is your क्या है 6 किलोमीटर है तुम्हारा एक लिमिट, उससे ऊपर जितना भी आएगा उसका सपोज परसेंटेज कितना है x, ठीक है, तो 6 का कितना आएगा 100 माइनस x। ये क्लियर है ये वाला? यस सर। ओके, अगर बोल रहे हैं हाँ, x का मतलब है कि सपोज ये हम एक टर्म यूज कर दिए कि x परसेंटेज है, मतलब कि जो भी 6 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जितना भी तुम्हारा वेलोसिटी का विंड है, ठीक है, वो थ्रू आउट द ईयर कितना परसेंटेज ऑफ टाइम आ रहा है, मतलब कितना दिन आ रहा है। ठीक है, सपोज वो आ रहा है सपोज x नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टोटल यू आर कंसिडरिंग 100 डेज, 100 डेज में सपोज x डेज आ रहा है, जो भी स्पीड है जिसका 6 किलोमीटर पर आवर वाला स्पीड वाला क्या बोलते हैं विंड कितना बार आ रहा है, x बार आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम 100 डेज माइनस x कर देंगे तो रिमेनिंग विल बी योर 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब नंबर ऑफ डेज आएगा। ओके, सो दिस इज योर काम पीरियड, ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ विंड-रोज डायग्राम। ओके, सी Wind-Rose diagram is what? It is a graphical representation. Please remember ये क्या है, ये एक ग्राफ है। ठीक है, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम आता है, your graph will not be provided to you. You have to draw the graph. Okay? तुम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें, और तुम लोग को ऐसा ग्राफ देगा नहीं। ओके, ये कैसा देखो सर्कुलर ग्राफ है। ठीक है, हम डिटेल्स में जाएंगे, दोनों टाइप का है, दोनों टाइप का अलग अलग लेकिन है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चाहिए, एज आई सेड, सी ये वाला देखो डायग्राम, इट लुक्स लाइक अ रोज, ये जो देख रहा है पूरा रोज की तरह दिखाई दे ना, ऊपर से रोज जैसे दिखता है, इसीलिए इसका नाम रोज है। और विंड क्यों? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग विंड डाटा टू ड्रॉ दिस ग्राफ। ओके, टू प्लॉट दिस ग्राफ। सो विंड डाटा आर
डायरेक्शन क्या क्या है, क्या क्या चाहिए हमको ये प्लॉट करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ द विंड चाहिए, ठीक है, जो कि ये सब है। देखो रेडियल जो डिस्टेंस, ये जो रेडियल जो लाइन है, दिस विल सिग्निफाई योर, दिस रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन ऑफ द विंड। अगर नॉर्थ है तो ये वाला है, साउथ है तो ये है, ठीक है। सो ये है तुम्हारा डायरेक्शन, रेडियल लाइंस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ओके। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ द विंड, मतलब कि ये जो सपोज एक सर्टेन स्पीड दे देगा, इतना स्पीड है, ठीक है, 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का स्पीड दिया है, तो बोला है कि नॉर्थ डायरेक्शन से वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाला विंड कितना परसेंटेज आ रहा है, 10%, मतलब कि 365 डेज में वो आ रहा है कितना, कितना आएगा 365 के 10%, कितना होता है 365 डेज का 10% कितना है 36.5, हाँ 36 अप्रॉक्स 36 डेज। मतलब कि क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन से वो 60 किलोमीटर पर आवर का ड्यूरेशन अगर 10% बोला गया है, मतलब कि वो कितना बार आएगा 36 डेज आएगा, ठीक है। 365 डेज में 36 बार वो उस डायरेक्शन से फ्लो होगा, उसका मतलब यही है ड्यूरेशन, ओके। और इंटेंसिटी मतलब स्पीड, ये जो 60 किलोमीटर बोल रहा है ये सब, ओके। अब देखो इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रनवे ओरिएंटेशन, ओके। ये कैसे आएगा हम बोलेंगे कि हमको रनवे ओरिएंटेशन ये ग्राफ से दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, ऑन ऑल दिस डाटा शुड बी अप्रोक्सीमेटली 50 to 20 इयर्स डाटा, ओके। मतलब इतना डाटा हम लोग को कलेक्ट सर्वे करके रखना है, मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वहां से हमको ये सब कलेक्ट करके रखना है और एवरेज करके हमको प्लॉट करना है, ओके। नाउ एज आई सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द विंडरोज डायग्राम। आज हम सिर्फ टाइप 1 कराएंगे, ठीक है। तो टू टाइप्स इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसमें कौन सा डाटा यूज करके प्लॉट कर रहे हैं, ओके। इफ वी आर यूजिंग ओनली द डायरेक्शन एंड द ड्यूरेशन, मतलब इन परसेंटेज, ठीक है, देन दैट इज योर टाइप 1। मतलब उस ग्राफ में तुमको सिर्फ ये दो डाटा लगेगा, एक लगेगा डायरेक्शन कौन कौन से दिशा से आ रहा है, एक लगेगा ड्यूरेशन इन परसेंटेज, ठीक है। तो उस दिशा से कितना परसेंटेज, मतलब एक ईयर का कितना परसेंटेज ऑफ द टाइम दैट विंड इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ड्यूरेशन लगेगा, ठीक है, इन परसेंटेज। अगर हम ये तीनों यूज करके अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ, देन दैट इज योर टाइप 2 ग्राफ, ओके। टाइप 2 हम बाद में पढ़ेंगे। सो अभी देखो ये इसके लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, ये याद रखो, ओके। नाउ टाइप 1 हम बोल रहे थे कि ऐसा दिखने में होता है टाइप 1, सी इट विल लुक लाइक दिस, ओके। ऐसा प्लॉट करेंगे, सोज द डायरेक्शन एंड द ड्यूरेशन। डायरेक्शन बोले थे ये रेडियल डिस्टेंस जो है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। और ये जो सर्कुलर है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ ग्राफ, सी ये सर्कुलर जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स द ड्यूरेशन, ठीक है। ये रेडियल लाइन रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन एंड द सर्कुलर line circles and the concentric circle represents your duration। ये जो 5 मतलब है कि यहाँ पे 5% है, ठीक है। ये 10 मतलब 10%, 15%, जैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ही सर्कुलर ग्राफ है ये, ओके। और टाइप 2 ऐसा दिखने में होता है, ओके। इसमें देखो क्या क्या है, इसमें डायरेक्शंस भी है, रेडियल भी है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर है, इट रिप्रेजेंट्स इन दिस केस द वेलोसिटी। ये जो सर्कुलर है जो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेरेज यहाँ पे ये ड्यूरेशन है, ओके। ये याद रखना, यहाँ पे इंटेंसिटी वेलोसिटी नहीं है, इसमें वेलोसिटी है ये वाला। और ये तो रेडियल लाइन है, और ये जो बीच बीच में देखो दिख रहा है तुमको, ये जो 0.1, 0.3, 0.1, दीज आर द ड्यूरेशन, ठीक है। यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्लियर है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ये सर्कुलर इट रिप्रेजेंट्स योर ड्यूरेशन and radial represents your direction, the duration in percentage and direction show करता है। whereas इसमें क्या है, radial तो ये direction है, लेकिन circular is your velocity of the या speed of the wind, okay। और इन दोनों के बीच में जो है ये सब एरिया जो है, उसके एरिया के अंदर जो डेसिमल में लिखा गया है, that is your percentage of duration, okay, that is the duration। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ टाइप 1 हाउ टू डेवलप, ओके। टाइप 1 हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे सिंपली हम पढ़ देते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ द विंड, इट इज बेस्ड ऑन, हम बोले थे दो डाटा लगेगा, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन, ठीक है। और कितना डायरेक्शंस लगता है, मिनिमम 8 डायरेक्शंस ड्रॉ करना पड़ता है और ऑप्टिमम इज 16। तो तुम लोग को ये 8 हटा के 16 नंबर ऑफ डायरेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, ये याद रखना है। दूसरा क्या है, डाटा इंक्लूड्स, क्या क्या डाटा हम लोग यूज कर रहे हैं, टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम, दिस इज द ड्यूरेशन फ्रॉम ईच डायरेक्शन, मतलब एक एक डायरेक्शन में कितना परसेंटेज ऑफ टाइम है वो डाटा हमको लगेगा, वो तुमको चाहिए रहेगा, ओके, सर्वे से करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन टू स्केल अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ द टाइम, मतलब कि ये जो परसेंटेज ऑफ द टाइम हम बोले थे, दिस ड्यूरेशन, ये तो ड्यूरेशन है, सर्कुलर कर्व सर्कल जो भी है इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ द टाइम, तो उसको स्केल में हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो सपोज ये एक सर्कल हम ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू टिल दिस डिस्टेंस, ठीक है, इसका यूनिट है कितना है 4, ठीक है, मतलब कि ये कितना परसेंटेज है, ड्यूरेशन कितना है 4% को ये सिग्निफाई करता है, ओके। उसके ऊपर और एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम 4 to 8 शुड बी सेम, स्केल में करना है, ओके, मतलब यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा कर दिए बीच वाला सर्कल, एक्चुअली इट शुड बी इक्वी डिस्टेंस, ओके, तो सेंटर से जितना डिस्टेंस यहाँ तक है, यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस 8 मतलब नेक्स्ट सर्कल तक होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट सर्कल इज 8% ऑफ द ड्यूरेशन, दूसरा है फिर 12%, चौथा है तुम्हारा 16%, ओके। तो ऐसे हम इक्वल स्केल में ड्रॉ कर दिया। ये ड्राइंग क्लियर है ना? तुम लोग को एक डाटा दिया रहेगा, ठीक है, तो उसमें से हमको ये स्केल करके पहले तो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट देख लो, हम मिनिमम तो ऑलवेज वी विल कंसीडर ड्यूरेशन एज अ 0 और मैक्सिमम जो भी होगा उसका हम लोग कंसीडर करेंगे, ओके, हम दिखाएंगे कि क्या है। तो ये सब एक्चुअली एक प्रॉपर स्केल में कर देना है। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ से अगर तुम 4 सेंटीमीटर लोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो इसका टोटल रेडियस कितना है, ग्रीन वाला का रेडियस कितना होगा, रेड वाला का रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो ग्रीन वाला का रेडियस कितना होना चाहिए मैम 8, राइट। वैसे 12 सेंटीमीटर फिर 16 सेंटीमीटर, वैसे करके हमको ड्रॉ करते जाना है, ओके। अब वो तुम लोग को स्केल में करना है वो अपने आप। अब क्या करोगे, अब this circle represents the duration of the wind in percentage, okay, and must be equidistant. Now cut this section, मतलब कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, वी हैव टू ड्रॉ द रेडियल लाइंस। अब रेडियल क्यों, क्योंकि हमको डायरेक्शन प्लॉट करना है, राइट। तो डायरेक्शन कैसे प्लॉट करेंगे, तो ऐसे प्लॉट करेंगे, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये लाइन हो गया। अब इसको भी तुम हाफ कर दो, ये 90 डिग्री है तो हाफ कितना होगा, 45 डिग्री एंगल में वो काट देना इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे स्लाइस कर दिया 40-40 में। ये वाला क्या होगा, दिस इज नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है, ये तो इतना आता ही होगा ड्रॉ करना, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन, ये कितना है टोटल 8 नंबर ऑफ वो हो गया। अब हमको और 16 चाहिए, 16 रेडियल पॉइंट्स चाहिए, राइट, 16 रेडियल चाहिए, तो इसको फिर से हम डिवाइड कर देंगे, अगेन वी विल बाइफरकेट दिस सेक्टर्स, ओके। तो इसको कर दो 1 2 3, सबको हम इक्वली डिवाइड कर दें। व्हाट इज द एंगल देन, अगर ये पूरा नॉर्थ से वेस्ट का तुम्हारा एंगल है 90 डिग्री, ये वाला है 45 डिग्री, तो ये विल बी 45/2, 45/2 दैट इज 22.5 डिग्री है, ठीक है। तो तुम इजीली स्केल से भी कर सकते हो ड्राइंग, ओके। अब इसको प्लॉट करो, व्हाट विल बी दिस, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा बोलो, अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, यस राइट। ये तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है लेकिन टेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो इसलिए इसका नॉर्थ ईस्ट, फिर ये नॉर्थ ईस्ट है लेकिन इट इज टुवर्ड्स ईस्ट, इसलिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो ऐसे ड्रॉ करते जाना है हमको। ये डायग्राम क्लियर है ना? तो ये हो गया तुम लोग का रेडी, दिस इज नाउ योर ग्राफ इज रेडी। अब इसको क्या करना है, प्लॉट करना है, विंडरोज डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, फॉर दैट वी मस्ट हैव डाटा। ये तो ग्राफ तुम लोग ड्रॉ किए, अब डाटा कैसे जाएगा, डाटा भी सर्वे करके निकल जाएगा या क्वेश्चन में तुम लोग को दिया रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमको ये रेडियल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सब रेडियल को ज्वाइन कर लिया, ये बाद में है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है कि दिस इज द डाटा, ऐसे एक डाटा दिया रहेगा तुम लोग को, ठीक है। देखो नॉर्थ डायरेक्शन चाहिए था हमको, ड्यूरेशन चाहिए था इन परसेंटेज,
तो नॉर्थ डायरेक्शन से कई बार तुम लोग का ये यहाँ पे स्पीड दिया नहीं है। ओके, दिस स्पीड, जितना भी स्पीड का वेलोसिटी है ये सब है तुम्हारा कितना है, अबव 6 किलोमीटर पर आवर, काम पीरियड के काम वेलोसिटी के ऊपर है ये सब, ठीक है। मे बी 60, 40 वैसा कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन इट इज अबव 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब कि अगर एज्यूम करो सपोज ये वाला v किलोमीटर पर आवर है, तो v किलोमीटर पर आवर का स्पीड नॉर्थ डायरेक्शन से 365, अगर बोलेंगे 100 डेज है तो 100 डेज में 6 डेज यहाँ से आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से वही वाला डायरेक्शन, वही वाला स्पीड का वेलोसिटी कितना बार आता है, 11 दिन आता है, ठीक है। अगर हम 100 डेज को अगर एज्यूम करेंगे तो वैसे करके ये गया है। ओके, तो अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस डायरेक्शन। ओके, तो कैसे प्लॉट करोगे बोलो। नॉर्थ डायरेक्शन तुमको पता है, ड्यूरेशन तुमको पता है। वी नो दिस रेडियल लाइन विल गिव अस द डायरेक्शन एंड दिस सर्कुलर लाइन विल गिव अस द ड्यूरेशन, ठीक है। तो नॉर्थ में जाओ, तो नॉर्थ का फर्स्ट क्या था, 6 है। तो अब देखो ये क्या है, ये है 4, लेड वाला 4 है, ये वाला 8 है। तो इन दोनों के समवेयर बीच में होगा। ये आई एस्टिमेट नहीं करना है, एकदम ग्राफ को अच्छी तरह से ड्रॉ करके करना है स्केल में। ओके, तो हम यहाँ पे कर दिए। सो दिस डाटा इज योर 6 है। ये क्लियर है ये वाला? हेलो, আছো কি? यस मैम। হ্যাঁ, আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। ওকে। ম্যাম এই চিত্রগুলো কি মানে বার করতে হবে আমাদের? হ্যাঁ, এই ডায়াগ্রামটা তোমাদেরকেই করতে হবে, ঠিক আছে। তোমাদেরকে শুধু এই জিনিসটা দেবে, ঠিক আছে। নাও নর্থ ইস্ট में পরীক্ষার जाएंगे तो ছবি আঁকতে হবে? হ্যাঁ, ছবিটা তো আঁকতে হবে, তো গ্রাফ তো পাবে না এটা এরকম কোয়েশ্চেন, গ্রাফ। মানে ছবিটা আঁকাই কোয়েশ্চেন না, কোয়েশ্চেনের সাথে ছবিটা আঁকতে হবে? हाँ, ये सिर्फ ये रहेगा तुम लोग का डाटा, और बोलेगा बेस्ट ओरिएंटेशन निकालो, ठीक है। फिर बोलेगा क्या बोले, যেটা থাকবে বুঝলাম না, ডিউরেশনটা পুরো দেওয়া থাকবে? हाँ, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन, ये जो टेबल है इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके, अब देखो यहाँ पे मिनिमम कितना है, मिनिमम इज 1, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम कंसीडर कर दिए, यहाँ का 0 है, मिनिमम को तुम 0 ही पकड़ लो। अब मैक्सिमम रेंज कितना जा रहा है तुम्हारा ड्यूरेशन का, मैक्सिमम देखो 15 है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 16 पकड़ दिया। इसके ऊपर तुम्हारा, अब इसको इक्वी डिस्टेंस में 4 भाग में कर सकते हो। ओके, वैसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट था 12, तो ये 16 वाला करने का जरूरत नहीं था, 12 में जाके ये सर्कल खत्म हो जाता, राइट। बट इट शुड बी इक्वी डिस्टेंस। ओके, तो ये ग्राफ देख कर ही तुमको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कंसीडर कर लेना है। तो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 15 है, तो इसको हम 16 कर दिया। तुम लोग 15 भी कर सकते थे, 5, 10, 15, वो तुम्हारे ऊपर, नॉट नेसेसरी कि 4 ठो कर्व करना है, 4, 8, 12 करना है। यू कैन टेक 5, 10, 15 ऑल्सो, लाइक दैट ऑल्सो। ओके, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए कि ये कर रहा है। अब देखो ইন্টারভেলটা নিজেদের মধ্যে, মানে 3 এর জায়গায় 3 বার 4 এর জায়গায় নিজেদের মধ্যে তুমি মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমামের মধ্যে যত ইন্টারভাল দিতে চাও তোমার ইচ্ছে মতো, ওটা তুমি হয়তো এরটাকে আরো 2 করেও দিতে পারো, ঠিক আছে। 8টা সার্কেলও হতে পারে, সেটা তোমার উপর। তার মানে যে 16 যদি বেশি হয় তাহলে তো ম্যাম আবার 20টাও নিতে হতো নাকি? 16 যদি হ্যাঁ বেশি হ্যাঁ হতো না, হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি এই ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যায়, 16 থেকে বেশি হয়ে যায়, তোমাকে আরেকটা কার্ভ সেভাবে বানাতে হবে, রাইট। নালে তুমি 20টা ম্যাক্সিমাম ধরলে, এবার কি করবে, 5, 10, 15, 20 এটাও করতে পারো। ওকে, তাহলে ম্যাম এগুলো করতে হলে তো কম্পাস স্কেল নিয়ে বসতে হবে। ইয়েস, কম্পাস স্কেল লাগবে এটাতে। ওকে, আর স্কেলটা তোমার উপর। এবার তুমি এটাকে 4 সেন্টিমিটার ধরতে পারো, ইয়া এটাকে তুমি मतलब 1:2 যেটা আছে হাফ, ওটাতে করে এটাকে 2 সেন্টিমিটারও ধরতে পারো, ঠিক আছে। এবার দেখো नॉर्थ ईस्ट में क्या है, 11 है। ম্যাম तो দেরি नॉर्थ আছে ম্যাম, हाँ, টাইমটা ম্যাম হয়ে এসেছে মোটামুটি। अच्छा, আমি এটা শুধু প্লট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। देखो नॉर्थ ईस्ट में इतना है तुम्हारा, नॉर्थ ईस्ट में इतना है, सब प्लॉट करना है खुद से। देखो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कितना है, 4, तो ये 4 में गया, ठीक है। अब देखो ये 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ठीक है। तो ऐसा करके हम प्लॉट कर रहे हैं। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है, आफ्टर प्लॉटिंग जॉइन, सब पॉइंट को तुम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, तुमको देखना है कि विच विल शो यू द लॉन्गेस्ट लेंथ, मतलब ये जो एक एरिया आ रहा है उसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन कौन सा है। अभी देख कर कौन सा लग रहा है लॉन्गेस्ट डायमेंशन?
मैम Which नॉर्थ direct- नॉर्थ ईस्ट থেকে साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ, वेरी गुड। तो ये वाला जो डायरेक्शन है, दिस इज द, मतलब ये वाला तो मतलब पता ही चल रहा है कि ये वाला लॉन्गेस्ट है। ओके, अगर कभी कभी होता है कि यहाँ पे भी और एक आ गया, लग रहा है कि दो हो सकता है, तो तब क्या करोगे, जस्ट एड अप दिस टू थिंग, मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से टोटल कितना था, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से था तुम्हारा 11 था, प्लस साउथ साउथ ईस्ट से कितना है, साउथ साउथ वेस्ट से है तुम्हारा 15। 11 प्लस 15 एक वैल्यू आएगा। अगर तुमको लग रहा है नहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में ज्यादा लग रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट प्लस साउथ ईस्ट का ऐड करके देखो दोनों में से कौन सा ज्यादा है। whichever is greater length, that length is taken consider as for your runway orientation। okay, तो इसी डायरेक्शन में हम रनवे को ओरिएंट कर देंगे। तो ये है तुम्हारा रनवे ओरिएंटेशन। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग। क्लियर है ना कि रनवे कैसे करना है ओरिएंटेशन? हाँ मैम। ओके, बाकी दे হ্যাঁ Yes, ম্যাম। ma'am. Clear. ওকে, এটা আমি কন্টিনিউ করব নেক্সট ক্লাসে, প্লাস তোমাদের Okay, ma'am. টাইপ 2টাও কনসিডার ডিসকাস করে নেব। ওকে, আর প্রবলেমটা যদি হয় আমি আরেকটা প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব, এটা দিয়ে যেটা এক্সামে আসে আর কি। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। ওয়েট ফর সেকেন্ড, লেট মি টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। ফটো নিতে হয় আমাকে, তোমরা তো অর্ধেক জনতে অ্যাটেন্ডেন্স দাও না।